weeds. It's up to you what kind of thoughts you cultivate in your mind, in your thoughts. The way you cultivate, the way you grow, the same you are going to reap. If you grow positive thoughts, you will have positivity in your life. But if you grow negativity, if you grow negative thoughts, bad thoughts, then obviously they are going to give you only the weeds. So decide with wisdom what you have to cultivate, what you have to harvest, and what you want your life to be. So hello and welcome back to Empower Tutoring once again. Dear students, in the last session we have discussed about few of the numericals on how to solve them in logarithms. Now it's time to see the solutions to be done by the use of log tables. Log tables are actually a resource which makes the calculations that you are doing in an easier manner. Whichever log, like for example, when we talk about log 10 to the base 10, we get a value 1. But if I ask you, can you tell me the value of log 11, log 29, log 37, log 45, log 89, log 95, then is it possible for us to keep in mind so many values? Obviously not. So, to make the calculations easier, we will refer the log tables. In the log tables, there are all these numbers given which we have to read from the table along with the mean differences. These tables are divided into vertical columns from 0 to 9 and then again the mean difference from 1 to 9. And we make use of these columns to find the values for different numbers in their logarithms. Let's see how are we going to do these questions, these solutions with the help of log tables. But before we start with the log tables, here I would like to mention few of the points. Whatever logs we are discussing right now, जितने भी logs अभी तक हमने सीखे हैं, जितना भी logarithm अभी तक हमने सीखा है, these are actually called the common logarithms. Keep this thing in mind. जो भी logarithms अभी तक हम कर रहे हैं, ये logarithms कहलाते हैं common logarithms. Common logarithms क्यों कहलाते हैं? Because here we consider the base as 10. यानी ऐसे सारे logarithms जहां पर हम base consider क्या करेंगे? 10 को consider करेंगे, common base रखेंगे. They are called as the common logarithms. तो यहाँ मैं short में लिख देती हूँ. All such these logarithms with base 10 are called the common logarithms. इसके अलावा एक तरीके का लॉगरिथम और भी होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम. वी कॉल इट अ नेचुरल लॉगरिथम. नाउ व्हाट इज अ नेचुरल लॉगरिथम देन? सो इन नेचुरल लॉगरिथम वी कंसिडर इट एज विद द बेस e. यहां पर हम नेचुरल लॉगरिथम्स को बेस e के साथ कंसिडर करते हैं. अब ये बेस e क्या है? तो e क्या होता है? e स्टैंड्स फॉर द इर्रेशनल नंबर्स. e कोई भी इर्रेशनल नंबर हो सकता है. अगर किसी भी लॉग का बेस जो है वो कोई एक इर्रेशनल नंबर है, then such kind of logarithms are known as the natural logarithms. I hope यहाँ पर मुझे irrational numbers क्या होते हैं ये बताने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, because all of you have learned these things in your previous classes. ठीक है. नॉर्मली जब हम e की बात करते हैं तो जो e की
वैल्यू आती है वो कुछ आती है 2.7182 एंड सो ऑन। तो हमें अभी फिलहाल हम नेचुरल लॉगरिथम्स की डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। वी विल ओनली फोकस ऑन द कॉमन लॉगरिथम्स विच आर विद द बेस 10। लेकिन ये क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ है नेचुरल लॉगरिथम, तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके लॉगरिथम्स में हम डील करते हैं। फर्स्ट इज कॉमन एंड द अदर इज द नेचुरल लॉगरिथम। तो वहां पर क्या डिफरेंस है कॉमन और इसमें, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि हम टेबल्स को किस तरीके से यूज करेंगे। अब ये कॉमन लॉग्स की जो हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉमन लॉग्स, कॉमन लॉगरिथम्स। तो कॉमन लॉगरिथम्स को थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। तो इन कॉमन लॉगरिथम्स में क्या होता है, जो भी नंबर्स हैं वो सारे इस तरीके से आएंगे। लाइक 10 स्क्वायर है तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट log 100 to the base 10 is equals to 2. If it is 10 cube, I can write it like this. So ये हो जाता है log 1000 to the base 10 is equals to 3. 10 to the power 5 है अगर, तो आपको पता है कि हमें कैसे लिखना है। Now everybody of you are quite aware of this thing. तो ये हो जाता है हमारा 5 एंड सो ऑन। तो कॉमन लॉगरिथम्स को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं बात करूं 10 to the power 0 की, इफ आई टॉक अबाउट 10 to the power 0, तो ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इट मीन्स दिस इज log 1 to the base 10 is equals to 0। तो इसीलिए log 1 की वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 0 आती है। ये आपने पहले यूज भी किया है, लास्ट जो हमने डिस्कशन किए थे वहां पर हमने इसका यूज भी किया था। तो ये 0 हो जाता है। अब जानते हैं हम कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जब हमें टेबल्स का यूज करना है तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है डेसिमल नंबर्स का, वो जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है स्टूडेंट्स, वो कोई नई चीज नहीं है। जब आपने एक्सपोनेंट्स के चैप्टर्स किए थे आपके 6th 7th 8th क्लासेस में, तब इस चीज को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के वे में किया था। कहीं कहीं उसको रेफर किया गया है एज द साइंटिफिक नोटेशंस ऑल्सो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, लाइक 1 4 6 8 7 9 अगर कोई नंबर है और मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता था, तो हम इसको कैसे लिखते थे, 1.4687 इंटू 10 to the power, इस तरीके से लिखते थे। आई होप आपको थोड़ा सा रिकॉल हुआ होगा कि ऑलवेज वी हैव टू प्लेस अ डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट एंड रिमेनिंग टू बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ 10 रेज टू द पावर। है ना, ध्यान आया आपको शायद थोड़ा सा कि हम कैसे करते हैं। जो भी नंबर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, मैं भी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आपको बता रही हूँ, ध्यान रखिए आप इस चीज को, आप पहले भी कर चुके हैं, ये नया नहीं है। और ये नंबर जो हम पढ़ रहे हैं ये डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। ये आपने आपके फर्स्ट चैप्टर में जहां पर प्राइम नंबर्स के बारे में बताया गया था, वहां पर आपने जहां कन्वर्जन सीखे थे, वहां आपने ये चीज को नोट किया होगा कि ये जो नंबर सिस्टम हम फॉलो करते हैं ये कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए और जो रिमेनिंग रह जाते हैं उसको हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू 10 रेज टू दी पावर। इसी तरीके से अगर कुछ ऐसा नंबर है 0.0046 सपोज, तो क्योंकि डेसिमल के बाद इतने सारे जीरोस हैं तो ये शो करता है पावर 10 की कैसी होगी, माइनस में होगी। तो मैं इसको लिख दूंगी 4.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर। कितने प्लेसेस हमने मूव किया, 1 2 3 4, तो 10 रेज टू दी पावर -4। तो ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन भी इसको कहा जाता है। क्योंकि इस तरीके से जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं, इट इज वेरी इजी टू मेमोराइज देम इन द फॉर्म ऑफ 10 रेज टू दी पावर। क्योंकि कई बार जो नंबर्स होते हैं और फिर जब हमको इस फॉर्म में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें वो बहुत सारे डिजिट्स भी याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ओनली व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली कीप इन माइंड द 2 places आफ्टर डेसिमल और सिंपली 1 place आफ्टर अ डेसिमल। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बात आती है, जब हम लॉग टेबल्स का यूज करेंगे तो वहां पर हमें
दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके यूज के बिना हम लॉग टेबल्स को रेफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो दोनों चीजें क्या हैं वो जानते हैं अब हम। तो ये जो दो चीजें हैं ये कहलाती है, पहली जो चीज हमें चाहिए वो कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो भी लॉग्स जिन भी नंबर्स के हमें ढूंढने हैं उसमें दो पार्ट आते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटिसा। ये दो चीजें हैं जो किसी भी नंबर का लॉग ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड द अदर इज द मैंटिसा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, क्या है उसको जानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे आती है, हमने मान लिया, तो अभी मैं केवल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रही हूं, तो ये मैंटिसा को अभी यहां से हटा देती हूं। लेट अस सपोज लेट n बी एनी पॉजिटिव डेसिमल नंबर। हमने मान लिया कि जो n है वो कोई पॉजिटिव डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब अगर मुझे इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, अभी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की थी, तो अगर मुझे ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको लिख सकती हूं n इज इक्वल्स टू m इंटू 10 टू दी पावर p। कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो भी हमने सीखा था, है ना। तो मैं मान लेती हूँ कि ये m और जो रिमेनिंग है वो 10 टू दी पावर p के फॉर्म में आ जाता है। जहां पर कि हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये m है, जो m हमने लिखा है, इसकी वैल्यू कैसे होगी, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 10। ये भी आपने कंडीशन देखी अभी कि ये जो वैल्यू आती है ये क्या होती है, 1 से तो ग्रेटर होगी और कैसी होगी, 10 से लेस होगी। क्योंकि अगर ये 10 बन जाएगा तो वो तो उसको पावर में हम यहाँ पर रेज कर सकते हैं, यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमने इसको अज्यूम कर लिया कि m की जो वैल्यू है वो इस तरीके से आएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी एक्सप्रेशन के लिए आई एम गोइंग टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो यहां पर मैं लिख रही हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है log n इज इक्वल्स टू log m प्लस p log 10। आई होप इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं क्योंकि ये चीज हम पहले सीख ही चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये हो जाएगा आपका log n इज इक्वल्स टू log m प्लस log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया केवल p। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूं, केवल इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देती हूं। तो यहां पर आ गया log n इज इक्वल्स टू p प्लस log ऑफ m। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल, कुछ ज्यादा हमने यहाँ पर नहीं किया है। अब क्योंकि हमें मालूम था कि जो m है इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, m की वैल्यू लाई करेगी 1 और 10 के बीच में, ये हम पहले जान चुके थे। तो अगर मैं इसी चीज में सब जगह लॉग लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, log 1 इज लेस देन इक्वल्स टू m इज लेस देन इक्वल्स टू log 10। ये मैंने कर दिया, दोनों तरफ लॉग लगा दिया। जो कंडीशन मैंने ली थी, log 1 की वैल्यू कितनी है आपको मालूम है, 0 होती है, m एज इट इज आ गया, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया कि जो m है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके केवल 1 के बीच में ही लाई कर रही है। जब हमने उसका लॉग लिया तो ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 0 से लेके 1 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि जो m है इट शुड बी अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। ये हो गया पॉजिटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब इससे हमें समझ में आया कि जो हमारा लॉग है इसके होंगे दो पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होंगे, पहला होगा कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया, और एक आएगा मैंटिसा। तो आई होप ये तो सिंपल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं आगे। तो इस चीज से ये चीज क्लियर होकर के आई, जो हमारा लॉग है इट इज गोइंग टू हैव 2 पार्ट्स। तो मैं यहां लिख देती हूं लॉग हैज 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं इसके। पहला पार्ट होता है
इंटीग्रल पार्ट जिसको हमने p से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा ये, और इसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक, कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो इंटीग्रल पार्ट आएगा लॉग का वो कहलाएगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ये इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और इवन जीरो भी हो सकता है। यानी कि किसी भी लॉग की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, अ नेगेटिव नंबर और अ जीरो। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, जो पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट हमारा आया, पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट, उसको कहते हैं हम मैंटिसा। जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा पॉजिटिव, दैट इज नोन एज द मैंटिसा। और ध्यान रखना है कि क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, पहले से भी हम कह रहे हैं पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही कंसिडर की जाएगी। यानी अब अगर मैं आपसे पूछूं किसी नंबर को अगर मुझे लिखना है लॉग के फॉर्म में, तो मैं कह सकती हूं लॉग एन किससे मिलके बना है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। ये दोनों चीजें मिलकर के लॉग एन को बनाते हैं, ठीक है। तो यही चीजों का हम यूज करने वाले हैं आगे टेबल्स को जब हम रेफर करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज द मैंटिसा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी गिवन नंबर के लिए। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। सो हियर आर रूल्स टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के हैं यहां पर कुछ रूल्स। तो पहला रूल है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू। तो पहला रूल कहता है कि जिस किसी भी नंबर का आपको लॉग निकालना है, अगर वो नंबर 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है, तब हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल -1, ये हम कर देते हैं। अगर किसी नंबर को हम चेक करेंगे, हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो हमें चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या वो नंबर 1 है या 1 से ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से लेफ्ट वाले प्लेसेस देखेंगे कितने हैं और उसमें से हम कर देंगे 1 को माइनस। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां पर। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा 4.32197। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, 4 से शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर है। तो जब 1 से ग्रेटर है तो आपको क्या चेक करना है, ये देखना है कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं। तो एक ही डिजिट है, यानी जो मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालूंगी तो मुझे उस एक डिजिट में से 1 को माइनस कर देना है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज इट इज गिवन 93.04। अब क्योंकि नंबर क्या है, 93.04 है, ग्रेटर देन 1 है, तो जब ग्रेटर देन 1 है तो मुझे क्या देखना है, डेसिमल से लेफ्ट साइड के डिजिट्स देखने हैं। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 में से मैं 1 माइनस कर दूंगी तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर है 6781। अब इस केस में तो डेसिमल प्लेस
है ही नहीं है तो आप इसको इस तरीके से डेसिमल लगा सकते हैं, ओरिजिनल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस यू हैव लर्न इन योर प्राइमरी क्लासेस में, चैप्टर्स में आपने किया हुआ है। ये क्या है, डेसिमल नंबर्स में अगर हम डेसिमल्स लगाना है तो हम बाद में लगा देंगे जीरो, तो नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो जी, यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो 4 माइनस 1 अगर आप करेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फॉर द नंबर्स विच आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। तो ये हुई उन नंबर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक निकालने का मेथड। अब सीखेंगे दूसरा मेथड। दूसरा मेथड देखते हैं, जब नंबर्स कैसे होंगे, छोटे होंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, एंड आई एम डैम श्योर कि इसके बाद आपको लॉग टेबल्स यूज करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपका कैरेक्टरिस्टिक गलत नहीं होगा, कभी आपका मैंटेसा गलत नहीं होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए, सेकंड जो पॉइंट है हमारा, वो सेकंड पॉइंट है, अगर नंबर लेस है 1 से, इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर 1 से लेस है तब हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका भी तरीका लिख दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको अपने कॉपीज में भी नोट कर सकते हैं, जिससे कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो। और अदरवाइज वीडियोस तो आपके पास है हमेशा के लिए, यू कैन क्लिक इट ऑन एंड एनी टाइम यू कैन जस्ट सिंपली व्यू इट। तो यहाँ जो हम कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे निकाल रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि हम नंबर कंसिडर कर रहे हैं विच आर लेस देन 1, तो एक नेगेटिव साइन आएगा सबसे पहले। इसके बाद हमें देखने हैं नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल। अब इसमें आपको क्या कंसिडर करना है, आपको नंबर ऑफ जीरोस कंसिडर करने हैं कि डेसिमल के बाद कितने जीरोस लगाए गए हैं, जो भी जीरोस होंगे उसमें हम +1 कर देंगे। ठीक है, इस बार हमें ये करना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है 0.1395, तो 0.1395 है, अंडरस्टूड सी बात है, ये वैल्यू 1 से लेस है। तो जब ये वैल्यू 1 से लेस है तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक माइनस का साइन लगा देना है, और हमें देखने हैं कि डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, तो मैं 0 लिख देती हूँ, और अगर मैं इसमें +1 करूंगी तो आई विल गेट अ 1 -1। ठीक है, तो जब भी हमें कैरेक्टरिस्टिक ऐसे वाले नंबर्स के लिए लिखनी है विच आर लेस देन 1, तो इसके आगे माइनस का लिखते हैं, वी राइट इट 1 बार। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो अगर 1 बार होगा तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमने जो लॉग निकाला है दैट इज फॉर द नंबर्स विच आर लेस देन 1। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इफ इट इज 0.00375, अब मुझे इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो माइनस का साइन, आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 3 जीरोस, तो 3 + 1 में कर दूंगी, तो ये हो गया -4, यानी मैं इसे लिखूंगी 4 बार। तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक निकालने के रूल, जो आपको हमेशा फॉलो करना है फॉर द नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड फॉर द नंबर्स लेस देन 1। तो अब इनके हेल्प से आप कैरेक्टरिस्टिक में और दोनों ही तरीके के नंबर्स का इजीली निकाल पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टेबल में से हमें इसे कैसे रीड करना है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं। तो आपको मैं बताऊं स्टूडेंट्स, इस तरीके के वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो आपके लॉग टेबल में गिवन होंगे, और इस तरफ एक कॉलम और होगा जहां पर लिखा होगा मीन डिफरेंस। अब आपको टेबल का यूज कैसे करना है मैं केवल आपको वही बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास फिलहाल टेबल नहीं है, लेकिन आप कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैं एक एग्जांपल ले रही हूं यहाँ पर, सपोज करिए नंबर है 7.89 एंड आई हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ 7.89। मुझे लॉग निकालना है किसका, 7.89 का।
तो लॉग निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक लेनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो हम उसमें से क्या करते हैं, 1 को माइनस करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके कॉलम्स दे रखे हैं, यहां पर आप देखेंगे नंबर्स लिखे होंगे इस तरीके से, लॉग टेबल के अंदर आप देखेंगे। तो आपको लॉग टेबल को कैसे रीड करना है, आपको देखना है कि 78 कहाँ लिखा है, और यहां पर आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर्स भी लिखे होंगे, ऐसे नंबर्स लिखे होंगे। तो अब मुझे क्या रीड करना है, मुझे 78 में 9 कॉलम को रीड करना है। तो ये 78 हो गया, और इसके बाद अगर मैं यहाँ 9th कॉलम की बात करूं तो यहां पर वैल्यू होगी 8971। 8971 यहां पर वैल्यू होगी। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखनी होती है लॉग निकालने के लिए, तो कैरेक्टरिस्टिक लिख दी मैंने, और अब जो वैल्यू आई वो मैं लिख दूंगी यहां पर 8971। ये हो गया आपका लॉग 7.89 की वैल्यू। ठीक है, सपोज करिए कि अगर यहां पर 7.89 के बाद कोई और डिजिट और होती, तब आप क्या करते, वो मैं आपको यहीं के यहीं समझा देती हूँ। सपोज करिए यहां पर वैल्यू होती है आपकी लॉग ऑफ 7.892, सपोज ये वैल्यू होती, तो तब आप क्या करते, सेम कैरेक्टरिस्टिक तो वही आपकी रहती 0 पॉइंट। ठीक है, यहां 78 में आपने 8971 रीड कर लिया, अब 9 के बाद 2 और है, तो ये जो 2 है इसको आप यहां पर मीन डिफरेंस में देखेंगे, यहां पर जो भी वैल्यू होगी, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, जो कोई भी वैल्यू होगी, तो जो लास्ट डिजिट हमें देखनी होती है वो वैल्यू हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो जैसे ये मेरा आ रहा था 8971, फिर मीन डिफरेंस में मुझे 2 देखना पड़ा, तो ये वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो ये मैं ऐड कर लूंगी, तो ये आ जाती है 8972, यानी इसका लॉग हो गया 0.8972। ऐसे आपको लॉग टेबल्स में वैल्यूज देखनी होती हैं। पहले 2 नंबर्स आप ये देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद का जो डिजिट है, एक डिजिट, वो आपको अगले कॉलम्स में देखेंगे जो 0 से 9 तक है, और फिर जो लास्ट डिजिट बचेगी उसे आप देखेंगे मीन डिफरेंस में, और यहां से जो वैल्यू आती है उसमें आप जो मीन डिफरेंस के साथ वैल्यू आएगी उसे हमेशा ऐड करेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दी लॉग्स फ्रॉम द लॉग टेबल। इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहां तक आपका हुआ टेबल्स का यूज खत्म हुआ यहां पर। अब इसके बाद एक चीज और है जो यहां पर आती है, और वो है एंटी लॉग। एंटी लॉग यानी नंबर दिया हुआ है, और एंटी लॉग से आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या करना है, हमें करना है उसका रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, देख लेते हैं एंटी लॉग को जल्दी से। ये हैं आपके एंटी लॉग्स। तो अब एंटी लॉग जैसा नाम बता रहा है, लॉगरिथम्स का बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइक सपोज अगर मैंने लिखा है log x की वैल्यू अगर y आती है तो मैं लिख दूंगी दैट x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग y। सिंपल सी बात है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए इसको आप रीड करेंगे। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है यहां पर मेरे पास, अगर मैं कहूं log x की वैल्यू है 2.1647, तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो एंटी लॉग्स को रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग्स को रीड करने के लिए आपको एंटी लॉगरिथम टेबल में से वैल्यूज रीड करनी पड़ेगी। और उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो डेसिमल से पहले हम वैल्यू लिखते हैं ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसका आपको कुछ नहीं करना है, आप कौन सी वैल्यू रीड करेंगे, आप रीड करेंगे ये, यानी कि आप देखेंगे कि 0.1647 आपके टेबल में कहां पर आ रहा है। तो आप 0.16 को देखेंगे, 4 में जाएंगे, 4th कॉलम, एंड देन इन द 7th कॉलम से मीन डिफरेंस लाएंगे, और उनको जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1459 आएगी 16th रो के 4th कॉलम में। और क्योंकि मुझे 7th का डिफरेंस भी लेना है तो डिफरेंस में आता है 1, तो आई विल गेट हियर 14 डिफरेंस 2, सॉरी, तो 1461 आ गया ये जो है वैल्यू। अब
क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 2 थी तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 146.1। वहां पर कैरेक्टरिस्टिक हम क्या करते थे, माइनस करते थे, तो यहाँ क्या कर लेंगे, उसमें 1 प्लस कर लेंगे जब एंटी लॉग निकालेंगे। तो 1461 आ गई एंटी लॉग की वैल्यू। इसी तरीके से इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए अब सिंपल हो गया होगा सॉल्व करना, फाइंड आउट करना। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करिए। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है लॉग्स में या एंटी लॉग्स में या किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो यू आर फ्री टू आस्क ऑन एम्पावर ट्यूटरिंग। तो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ पाएं और इन पर बेस्ड अपने बुक्स के एक्सरसाइजेस को इजीली कर पाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। अभी तक के लिए आपके लिए लॉगरिथम्स का ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक खत्म हो गया है। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ एंड अनडाउटेडली कुछ नया ऐसा जो आप हमेशा से सीखना चाहते हैं। सो टिल देन enjoy learning and have a nice time. Click below to subscribe and watch more videos.